হাই আই ওয়ান্ট একটা ভালো কথা বলতে চাইছি ইউ ক্যান সি দিস ইয়াররিংস দিজ আর কুইলিং ইয়াররিংস অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি bought it at a very cheap price from Shelter Home earlier year, and I wore it for the first time today. Okay, I had gone to an open mic, and open mic এ যাওয়ার পথে পথে এই জিনিসটা আমার মাথায় আসছিল, and I felt like talking about this topic because relatability, like আমার पोजीशने যদি অন্য কেউ আছে, if someone is there जो मुझे समझ भी सकता है and all that, तो मैं वीडियो बनाती क्यों हूँ ताकि कोई ना कोई आकर फ्यूचर में कोई भी मेरा वीडियो देखे तो समझिए कुछ, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे। एंड अभी दुविधा टाइप चल रहा है, दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़। और मैंने यहाँ पे अभी नोट्स बनाए, एंड नाउ नोट्स बनाना अच्छी बात है, पता है, बिकॉज छोटे छोटे नोट्स से हमें पता चलता है क्या बोलना है। इट इज़ अ वे ऑफ नोइंग, बिकॉज आई एम एक्चुअली लर्निंग दिस राइट नाउ। क्लैरिटी मिलता है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स एक्स वाई जेड रहता है, नोट्स बना के सब कुछ पता चल जाता है। तो मैंने ये नोट्स बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा है जो आज का शायद थंबनेल पे होगा कि जॉइनिंग बीएड कॉलेज, gap year, confusion, parents fight and more, and I'm going to discuss this here a little bit ki see, the point is that around earlier year when college ended, I was very confused, and सब बोल रहे थे मास्टर्स कर लीजिए, और मुझे एक जगह पे बोला भी था that अगर मैं मास्टर्स करूँगी तो मुझे उस वहाँ पे जॉब मिल सकता है। एवरी वन इज़ प्रेफरिंग फॉर मास्टर्स, but at that point of time and in general, I felt that doing masters in English through private university would be very tough. I'm not ready for it, more than that. So I felt confusing, I felt that, but still at the end it was like I tried. And then like at that time also I had gone to an open mic with Devoshmita Di, and on that day or after that day we tried to fill up the application form of IGNOU, but तभी कुछ मतलब कुछ सर्टिफिकेट या कुछ नहीं था तब। So luckily or unluckily I didn't get into it, and then what happened, my father gave me this idea of going for the course that I'm doing right now, that is cosmetology. And I was actually crazy for this thing that मुझे पैसे चाहिए। तो obviously I felt this way that okay, I'm gonna do this job or whatever come, because उस समय ना वो कोर्स दे के बोला था प्लेसमेंट दे पे, which means like ये कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट देगा। बट राइट नाउ आई फील लाइक आई डोंट इन्जॉय डूइंग सलून वर्क। मुझे सलून का काम उतना भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट माई पैशन, इट इज़ नॉट द वे विच विल मेक मी हैप्पी, और इट इज़ नॉट द वर्क वेर आई विल फील द फुलेस्ट इन रियल लाइफ। वही प्रॉब्लम है। मतलब सीखने के लिए ठीक है, सीख लेते हैं एंड ऑल दैट, डांट में करके थोड़े से मार्क्स आ भी जाएंगे, बट यही करियर और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये तो मुझे नहीं समझ आता। एंड yeah, I have unfulfilled dreams, because अगर मेरे पास like see, doing course from private universities mean a large of amount of money is needed, और हम लोग सच में बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, तो ऑब्वियसली मतलब 4 लाख 5 लाख से ये कोर्स करना इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। और मुझे लोन, आई थिंक लोन का अभी ऑप्शन दिख रहा है, बट उसमें लगता है लोन इज़ नॉट अ थिंग दैट आई वांट टू डू। I don't want to put pressure on my parents, and that's why I didn't opt for it. And I was confused and I was lost, and also mentally I was not well. I think earlier I have made videos about this, that I suffered from depression and I have a mental condition also. So obviously I was mentally not prepared and well, and I was trying to struggle, and that is how I got into open mics, because open mics se baat karte karte I improved. I slowly started doing this, what I am speaking right now. I slowly started joining shelter home, and I have been teaching at shelter homes since there is time, like बहुत वक्त हो गया है ना। अभी तो मैं रोज़ या कभी कभार जाती हूँ। तो शेल्टर होम में जो मैं NGO के थ्रू जाती हूँ, दैट इज़ रियली समथिंग आई लव। एंड उससे ना देर इज़ नो मनी आई टेक, बट आई गिव द बेस्ट, एंड हाउ आई, इट इज़ लाइक वो बच्चा सीख जाए। इट इज़ हाउ आई कैलकुलेट कि वो बच्चा कुछ सीखे। एंड सीखना इज़ नॉट दैट ओके आज 100 out of 100 लाना है। मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि मार्क्स आते जाते रहते, तुम क्या सीख रहे हो।
अगर तुम्हें ज़ीरो मिल रहा है तो तुम्हें अपनी गलतियाँ पता चलना चाहिए और ये करना चाहिए, हमको फिर से ज़्यादा अच्छे से ट्राई करना चाहिए ताकि हम पास कर जाए। तो ये चीज़ें मुझे पहले से नहीं आता था, बट मुझे आहिस्ते आहिस्ते ये जो चीज़ें हो रहा है आसपास का, और उसके साथ कॉलेज करके जो भी मैं करा रही हूँ शेल्टर होम्स में, उससे मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि आई मीन मेरे को आइडिया यही आ रहा है, बीएड करेंगे, बीएड করব बीएड করব কেন কি আমি এটাই মানে রিয়েলাইজ किया। वेट 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 वेट, क्या हुआ क्या हुआ? नो नो नो, या 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 अरे नहीं नहीं, कैमरा तो सही से नहीं हो रहा है, नहीं है। अभी मैं अभी दिख पा रही हूँ ना, देखे बच्चों। तो वही है। जो इजी, मेरा तो यही है कि इजी रूट लेना चाहिए, इजी नहीं, कंफर्टेबल रूट। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट कैरियर्स, एंड रियली स्पीकिंग आई रियली फील टू एवरी टीचर वॉचिंग दिस और एवरी वन हु पेरेंट्स, वो सबको अभी के ज़माने में करियर काउंसलिंग फ्रॉम 11 to 10 से कराना चाहिए बच्चों को। बिकॉज इन माई टाइम देयर वॉज नो ऑप्शन। अगर आप टीचर तो था ही नहीं, देयर वॉज लाइक आइदर यू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। और टीचर भी बहुत चिंदी रीज़नों की वजह से होता था, लाइक दोज रीजन्स आई डोंट वांट टू डिस्कस द रीजन्स बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल। बट मुझे लगता था, या मैंने जो भी टीचर होने का रीज़न देखा है ना, वो चीज़ें बहुत चिंदी लगता था। आई फील लाइक दैट मे बी दैट इज़ नॉट द रीज़न दैट आई बिलीव टू बी देयर। लाइक इट इज़ नॉट अ चिंदी थिंग, बट आई रियली डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता वो पॉइंट्स। तो मैंने कभी सोचा नहीं टीचर बनेंगे एंड ऑल दैट। आई नेवर थॉट, एंड आई वाज ऑलवेज, आई एम टेलिंग यू that I was mentally not well. So obviously I never thought about it, and I started doing volunteering with this thing that कुछ पता नहीं मैंने कर लिया, क्योंकि obviously जिस जगह पे मुझे volunteering करने का मौका मिला, वो जगह थोड़ा सा मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, पर मैंने कहा था, सोचा था कि अगर उधर मैं सच में एक टीचर बन जाऊँ। बट स्टिल लाइक अभी मैं हाफ हाफ ही बोल सकती हूँ, बट मैं टीचिंग कर रही हूँ, अलग तरीके से कर रही हूँ, शेल्टर होम में कर रही हूँ। उसका जो मेन स्कूल होता है वहाँ पे मैं ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बीएड करने के बाद शायद हो सकती हूँ, या कोई और सब स्कूल के लिए एलिजिबल तभी हो सकती है जब बीएड होता है। तो दिस इज़ वाई आई रियलाइज दिस वी 2 days और 1 day बैक दैट मुझे बीएड कर लेना चाहिए, और इस साल तो कर लेना ही चाहिए। इस साल होगा तो जितनी जल्दी होगा मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। और हाँ, उसी पे बात करें। बट द थिंग इज़ दैट मैंने यहाँ पर लिखा है कि बीएड के लिए आई विल सर्च कॉलेजेस, आई हैव टू सर्च कॉलेजेस, एंड आई एम एमिंग फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली मनी इज़ द मैटर। पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बाबा नेक्स्ट ईयर रिटायर कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। अभी रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली द नैगिंग थिंग एक्सवाइजर, अभी भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं विच आई विल डिस्कस अ लिटिल बिट लेटर ऑन। तो पैसे तो गवर्नमेंट एडेड है, बट देन आई द ओनली पार्ट ऑफ एजुकेशन इज़ दैट सब आपकी क्वालिटी या काबिलियत से ज़्यादा आपके मार्क्स को देखते हैं। तो आई डोंट नो द CGPA दैट आई गॉट इज़ इनफ फॉर अ गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉलेज और नॉट। But even if I don't get into it, I just get into a college just for the course to learn and get something out of it. ये मेरा ये होप है, कोई अच्छा कॉलेज जो कंफर्टेबल जगह से जा सकता है उसमें मिल जाए, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा करना है। पर टेंशन तो है, मार्क्स का टेंशन है कि क्या होगा एंड ऑल दैट। उसके साथ ये तो मैंने बोला कि आई एक्चुअली कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023। अभी 2024 हो गया, अभी मैं गैप ईयर नहीं कह सकते, बिकॉज इन दिस 1 year आई एम डूइंग कॉस्मेटोलॉजी। अभी कॉस्मेटोलॉजी एक आउट ऑफ द मेन करिकुलम वाला कोर्स है, तो ऑब्वियसली बट ये आई मीन मम्मा पापा कल ही बोल रहे थे और वो चीज़ से नैगिंग करेंगे मुझे कि एक बছর তুই নষ্ট করেছি। बट गैप ईयर देने में प्रॉब्लम क्या है, मतलब आई वॉज नॉट रेडी, अभी मुझे श्योरिटी नहीं पता था, अभी जो थोड़ा सा श्योरिटी है। एंड द थिंग इज दैट द श्योरिटी इज लाइक आई एम अ लिटिल बिट श्योर दैट राइट नाउ थ्रू द एजुकेशन दैट आई एम गोइंग टू हैपन, अगर उसके साथ भी कुछ ना कुछ आई विल शेयर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन दिस वे, लाइक दिस chat way. I have shared, and I also have some chapters, like I actually have shared this video on message writing,
and then there are other videos that I'm thinking of posting on internet. तो आई डोंट नो प्रैक्टिकली कौन सा वीडियो चल जाए, कौन सा एजुकेशनल वीडियो और या कौन वीडियो वायरल हो जाए. आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज फॉर मेकिंग इट वायरल, बट आई एम डूइंग माई बेट टू मेक अ चेंज आउट देयर, टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, टू गिव समथिंग यूजफुल आउट देयर. तो दिस इज़ माई थिंग, एंड मुझे अभी यही है कि ये सब कुछ करते करते, एंड इफ़ आई लर्न, yeah, I know I have this thing that paisa is very important, I know that, but being happy is important too. That is the thing, like if you don't be happy, then how can you manage life? The thing that I do after teaching kids is so much useful for me. लाइक यू नो, शेल्टर होम पे जो भी बच्चा है, बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे खुद से प्यार होता है उन सब से के बारे में सोच के. आई फील लाइक डेडिकेटिंग माई टाइम टू दिस प्रोफेशन सो मच, एंड इसी वजह से मुझे बीएड करना है. गैप ईयर है, बट उसी वजह से बेसिकली मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है. कल ही बोल रहे थे एंड ऑल दैट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता है कभी कभार कुछ चीज़ें से. एंड मनी इज़ द मैटर. आई एम स्केयर्ड कि पैसा देने के बाद, बट अभी थोड़ा सा कम गया है, मनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट इट इज़ लाइक हाउ गोना मैनेज. मनी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. पैसा इज़ लाइक पैसा कैसे करेंगे, एंड वो सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बीएड के लिए कुछ अमाउंट लगेगा विच इज़ नॉट रियली चीप. और ये अलग बात है, अगर यूट्यूब कभी वायरल हो गया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, बट वायरल तो अभी नहीं होने वाले ना. आई एम डूइंग यूट्यूब सिंस 2020, 2021, 22, 23, दिस इज़ 4 years. 4 साल कैसे भी करके मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ. इस बीच मेरे को मेंटल कंडीशन से सफ़र हो गया, उससे बाहर आने के लिए मैंने वीडियोस बनाए, उससे बाहर आते आते जो अभी ज़िंदगी है उसको शेयर कर रही हूँ, बट नोबडी इज़ गिविंग मी दिस वे दैट एल्गोरिथम इज़ वर्किंग प्रॉपरली. एंड आई डोंट हैव अ सेटअप जहाँ पे मैं अच्छी तरह से एल्गोरिथम, या मुझे वो एक्सटर्नल टीम वर्क या सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बिलीव या वैसे नहीं है. मुझे पता है, मुझे एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्ट है. तो ऑब्वियसली पता नहीं यूट्यूब का क्या होगा, पता नहीं, बट आई एम होपफुल दैट मैं वीडियोस बनाती जाऊँ, बिकॉज इन दिस वे आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग माई प्रोसेस ऑफ लाइफ, एंड आई एम रिकॉर्डिंग, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस वे दैट मेरे वीडियोज अपकमिंग कुछ आए जहाँ पे कुछ चेंज आए, कुछ पॉजिटिविटी आए. लाइक आई पोस्टेड अ वीडियो येस्टरडे, कॉलेज ट्रिप का, कॉलेज ट्रिप नहीं होता है, कॉफ़ी हाउस ट्रिप. So coffee house trip is a random vlog. I think it is so easy and so comfortable. Like if you watch it, you will learn something in Bengali, English, or whatever. किसी तो सीखते पारबे. तो ऐसे कितने vlogs में ला सकती हूँ और लाने की कोशिश भी करूँगी, उतना तो है. बिकॉज हाँ, डर अभी भी है थोड़ा ज़्यादा कि मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ना चाहिए. बिकॉज मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ जाता है तो आई रियली suffocate and be like I want to end life, which I don't want. I want to live life. I want to enjoy life. I want to go on open mics and speak more about my journey. I want to get appreciated. I want to keep up this way that one day I perform at a very, like I perform at Tea Patel. I perform at Commune and those, like not Tea Patel open mic or Commune open mic, but I perform at Tea Patel or Commune or very famous मतलब पेड शोज़ जहाँ पे मेरी बातें सुने. मुझे वो एम्बिशन रखना है, और ये एम्बिशन ऑब्वियसली ज़िंदगी भर, मतलब पहले से नहीं था, ये ग्रोथ हो रहा है, वो मुझ में पता चल रहा है क्या हो रहा है. बिकॉज शेल्टर होम और कुछ चीज़ों से लाइक आई एम ऑल्सो डेवलपिंग एज अ पर्सन. सो बट वो भी है, मम्मा पापा की जो डिससेटिस्फेक्शन है वो वाला है. और इट्स लाइक पहले का क्या था, मेरा बहुत कन्फ्यूजन था. मतलब नेक्स्ट ईयर, सॉरी अर्लियर ईयर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि दैट आई लुक अ लिटिल बिट ब्यूटीफुल. सो मुझे पता नहीं, मुझे एक्टिंग करने के बारे में मैंने सोचा मुझे वो अगर होगा, या मुझे डायरेक्शन हमेशा से बहुत ज़्यादा करना था. पता है, लाइक ऋतुपर्णा घोष की मैंने मूवीज़ देखे है, तो आई वॉज लाइक आई विल ऑलवेज डू समथिंग इन डायरेक्शन. बट डायरेक्शन का भी वो सपोर्ट सिस्टम या वही जुगा जोगटा नहीं, तो मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चला. एंड डायरेक्शन इज़ नॉट माई थिंग. तो उसका वो सब नहीं हुआ, जो नहीं हुआ. अभी उस बीच बेसिकली मैं पोइट्री स्टोरी टेलिंग में रुको, हाँ, अभी उस बीच मैं पोइट्री स्टोरी टेलिंग में आ गई. और ऑब्वियसली लाइक आई हैव बीन सपोर्टेड बाय देवश्री, नॉट just as an artist but also as someone, like I look up to her. So obviously like in a
overall development. I learned a lot from her, and in a way, and she actually said this once in a real call that when you do something that makes you happy, money is not everything. Like এরকম একটা কিছু বলেছে। So I mean, I really feel that because I know I'm worried about money, but then also I'm trying, like for this video that I'm making right now, if I post it on internet, I am hoping that someday it is monetized. I am creating opportunities for me, even if it is the toughest thing to be looking at right now. And I'm doing it not by trying to gain something in a negative manner. I'm trying to bring up, मतलब मैं पॉजिटिव नहीं, मतलब यूजफुल चीज़ों पे बात करने की जितना सोचती हूँ, मतलब जितना कोशिश कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है। अभी एक्टिंग तो नहीं हो पाया, और एक्टिंग सीख लेते शायद, बट नहीं सीख लिया बचपन में, और अभी नहीं होगा एक्टिंग का कोई स्कोप या जो भी है। एक्टिंग तो नहीं होगा, डायरेक्शन भी होपलेस है, राइटिंग पब्लिशिंग के लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं, बिकॉज आई एम जॉबलेस। सो हाँ, मतलब वही है। तो इस बीच मुझे लग रहा है कि 2 साल, और पहले ज़्यादा मुझे क्लैरिटी नहीं था कि ये 2 साल पढ़ के मैं क्या अचीव करूँगी एंड ऑल, बट अब क्लैरिटी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो भी है। एंड आई एक्चुअली अटेंडेड द ओपन माइक, एंड अभी उधर के लोग पता नहीं, अच्छे एक्सपेंसिव कॉलेज था, आई लीड से शायद मीडिया साइंस में कोई कोर्स किया। तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू अ कोर्स in media science because I always say I want to be in media, but I didn't get the opportunity because money was the thing, and it's okay. I really realized the conversation जो आज बोला गया, I felt like जो लोग मीडिया साइंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद कुछ उखाड़ ज़्यादा लेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ हार्ड वर्क से होता है। टुडे इफ़ आई स्टडी एंड इफ़ आई समवेयर डू माई द बेस्ट to get into a good way of learning from B.Ed and everything, and I try, then I will get into a good school. मैं बच्चों को जब पढ़ाऊँगी, then someone will like me or someone will understand me. This is what I want. So वही है, and अभी का प्रेजेंट तो ये तो दिख रहा है। कॉलेज करছি, और कॉलेज करने के साथ साथ obviously I am doing the volunteering job, and it is really good. I am thankful, and volunteering job is something that is teaching me to be very truthfully be there for, like, I don't know, I mean, I learn a lot. I learn a lot from teaching these, whoever I teach, whoever I be with in the shelter room, I learn a lot. It is in itself a magical experience for me right now, and that is why it is coming up that B.Ed कर ही लेते हैं, this is what is it. And এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক যে ম্যারেজ। তো as it is, by the time I was 21 when I fell into this very bad, depressive, ugly zone, then I felt this way that I want to die. So at that time I remember I was very desperate to be happy. So I remember asking माँ कि खुश होने के लिए क्या करना है, and my माँ said this thing that to be happy you will get a good husband, and then we will marry you with that good husband, you will have kids, and you will be happy. This is how she said. I felt that this is how life goes on, and this is how it is gonna sum up, but I think till now I'm not married. और जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन होता है कि सच में कोई मर्द मुझे खुश कर पाएगा, ये मुझे कभी कभार डाउट होता है, क्योंकि I have literally very annoying, ugly experiences with men. The insecurities, the humiliation, the disrespect, the way they treated me like a piece of meat. These are the things that I have experienced a lot. So I cannot fully, completely be like a man will save me. I know there is no Prince Charming for me. There will be no Prince Charming for me. Nobody is like in real life Prince Charming का topic ही गलत है, क्योंकि चार्म इतने दिनों तक, 1-2 दिन तक कर सकता है प्रिंस चार्मिंग। ज़िंदगी भर बिताने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ प्रिंस चार्मिंग, यू जस्ट हैव टू बी अ ब्यूटिफुल पर्सन। बट क्या कोई लड़का जो मुझसे शादी करेगा वो सच में मेरे साथ ब्यूटिफुल होगा, ये क्वेश्चन तो है ही। एंड आई डोंट नो, अभी बच्चा तो अभी मेरे पास पता नहीं, आई फील अबाउट द बच्चा पार्ट कि मैं ना प्यार करने पे भरोसा करती हूँ। पता नहीं, अगर मेरा कोई बच्चा, अगर ऑब्वियसली आई नीड अ किड, लाइक अगर मेरा कोई बच्चा होगा तो ऑब्वियसली खुशी तो होगा,
पर मैं जिन बच्चों को सच में प्यार दिया है, like there are kids out there whom I love a lot, like I pray for them, I be there, and there have been kids out there. हाँ, एक टाइम पे मुझे लगा कि अगर ये मेरा बच्चा होता ना तो मैं उससे दूर नहीं होती, तभी वो ज़्यादा पेनफुल एंड XYZ। पता है, अपनी खुद का बच्चा अलग ही वाइब है, पर ये कंसेप्ट भी तो मैं तोड़ सकती हूँ ना। ये कंसेप्ट सिर्फ ऐसे ही तोड़ सकती हूँ कि टुडे शायद वो मेरा बच्चा नहीं है, पर उसके साथ अगर कुछ भला करूँ, उसको समझाने में, उसको जस्ट मैं मतलब इसीलिए मुझे टीचिंग में आना भी है कि आफ्टर बीइंग इन टीचिंग आई कैन एंगेज इन अ जॉब वेयर आई कैन चेंज समवन लाइफ, मतलब किसी की ज़िंदगी में अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ कुछ पढ़ा वढ़ा के। शायद वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन उसको अगर मोहब्बत दिया है तो मैं किसी की ज़िंदगी चेंज एक बहुत हेल्दी एंड ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहती हूँ, और वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करता है। एंड या मतलब वही मैंने क्वेश्चन लिखा भी है, बोला मैन रियली फिक्स मी, एक मर्द सच में मुझे फिक्स करेगा, क्या गारंटी है? मेरे पास तो अभी गारंटी क्या, मेरे पास कुछ मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला। अगर होता तो हो जाता और मेरी शादी हो जाती, अभी मैं कुंवारी नहीं रहती यार। बट I might have faced the ugliest of things with men with this thing, that a man may not fix me. A man can be there for a duration of time to give me something beautiful, but I have to use those beautiful memories to create a life of my own. I have to be there for myself, मतलब मेरे लिए खुद के लिए रहना चाहिए। I have to be on my own, and I have to also do something through which I be doing something that is making me be like you are making an impact and adding value to your life, Tanushree. This is how life should be in real life. And why B.Ed? क्यों B.Ed करना है? मैंने मतलब ये मैंने टॉपिक वाइज पता है ये वीडियो का कैसे मैं या तो वीडियो का बेसिकली हाँ भी तो हारा है। तो बेसिकली क्यों B.Ed करना है? B.Ed का करने का मैंने जो रीज़न थोड़ा सा बोला है, और वो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि पहला तो B.Ed का, क्योंकि टीचिंग मुझे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली टीचिंग से सीखने को बहुत मिलता है। अभी मेरा आइडिया बहुत अच्छा है कि ऐसे समझाओ बच्चे को तो इजीली समझेगा। कैसे मेरे को ऐसा होता है कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करके एक बच्चे को सिखा सकती हूँ, एक बच्चे को एक कंसेप्ट ग्रैस्प करा सकती हूँ, एक बच्चे को एक सब्जेक्ट लाइक करा सकती हूँ, पसंद करा सकती हूँ, उसको ग्रो एंड डेवलप करा सकती हूँ। एंड वो मेरा मेन इंटेंशन होता है, तो वो टीचिंग से मैं कर पाऊँगी। और उसके साथ मैं बच्चों को प्यार कर मतलब उनसे प्यार सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न लव फ्रॉम चिल्ड्रन। सो ऑब्वियसली इफ आई टीच, इफ आई be with them someday, here and there I will learn that love from them, and I want to not just dream and see this, I want to make it real in real life too. And self learning is something that is there, like self learning मतलब खुद को खुद सीखने को बहुत कुछ मिलता है। I mean, like I can tell you, it is like a self learning process, like how a teacher is in real life. I mean, I don't know how you will relate to this, but when I teach people, or when I be with someone asking questions and all, then I learn a lot. I learn a lot from them. I learn a lot, and I think self learning, it is a reflection on life and everything else. So these things I can do out of teaching, and I'm excited. I want to teach. This is how I feel like. And yeah, पर लास्ट कंक्लूडिंग जो लिखा है कि मेरा तो यही है कि अभी तो बेसिकली कॉलेज देखना है। कॉलेज देखते হবে এবার কলেজটা কি হবে, I hope I get it, and a journey that is worth of remembering should start out there. With that, I should do this so much that I really get teaching opportunities in a good school, and I really dedicate myself in teaching in such a way that someone remembers me with a positive note, someone really relate with me, someone really get inspired by me, someone really can get motivated by what I say. And I want to do this in real life, so I hope I do it. Keeping fingers crossed, this is how I'll say, the fingers crossed रख के सोच रही हूँ, अभी वो करना ही है। देखते कैसे होता है, ये मेरी एक जर्नी और मैं एक बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
क्लैरिटी मिल गई है, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी तो मिल गया, बट देखते कितना पापड़ पीलना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, तेलना पड़ेगा, कीलना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा। आई एम वेरी कन्फ्यूज एंड बट कन्फ्यूज, बट टेंशन तो होता रहता है, तो उस पर है, पर देखते क्या होता है। और আমার মুখ ব্যথা করছে একটি বাতে করিও না, মুখ ব্যথা করছে অ্যাকচুয়ালি। বাট আমি কথা বলতে ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি, তাই জন্যই তো একা একা ভিডিওগুলো বানাই, যাতে তোমরা কেউ দেখো, someone watch it, relate to me, and whatever the message is there, I love reading them. I did a post video on this YouTube for something, someone said me to help her, so I posted a video for her, and she messaged, and I really read it. I felt happy. It is a really big win for a small content creator like me. So obviously, whatever you feel, what is your take on it, or what you want from me, what content you want me to very be take it for you all, tell me. Like, you can tell me, you can tell anything. Please don't. I hope you are sensible enough to not put negative shit out there when you can have the choice to do something better in the comment section. So obviously, please carefully tell your comments, एंड ऑब्वियसली मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल बटन वो भी ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, मतलब कुछ ना कुछ वीडियोस मैं डालती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तरीके से हम मिलते जा रहे हैं, तो हम मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ नए वीडियो से। मैं कुछ ना कुछ सिखाते या सीखते हुए कुछ ना कुछ लाती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। कल नहीं मिलेंगे, मतलब कभी ना कभी मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपको तो आना ही है, मुझसे मिलना होगा, तो कोई ना कोई मेरे वीडियो को देखना। अभी के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो बाय, अभी के लिए बाय।